In this particular video, we are going to talk about the body fluids in circulation. What do you think? How long must be our circulatory system? It would go near about 1 lakh kilometers. How much? What is this blood and what it is made up of? Periphery of long bones. So what is periphery of long bones? Serum क्या हुआ? Serum equals to plasma minus clotting factor. Write it down. Write it down. MLA. Member of Parliament. क्या कहते हैं इसे? ठीक है, MLA. आप तो जानते हो MLA की पोजीशन होती है बढ़िया सी पॉलिटिक्स वाली. Now, how to remember the speciality of these things? I have got you a chart for this, right? The table over there, and you can also use the same thing for remembering it more prominently. अगर यहाँ पे WBCs का काउंट कम हो जाता है तो कोई कंडीशन है, जैसे मैंने आपको RBC के सिचुएशन में बताया कि एनीमिया हो जाता है. Hello and a very warm welcome to all of you. This is Devika and I welcome you all to the platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this particular video, we are going to talk about the body fluids in circulation. So we all know that our circulatory system is helping us to circulate things inside our body. Right? Things like nutrient, gases, as well as the waste, isn't it? Now, what do you think? How long must be our circulatory system? So just an eye-opening fact for you people over here, that if we pull out the veins, arteries and capillaries and put them end to end, right, it would go near about 1 lakh kilometers. How much? 1 lakh kilometers. And just to give you an idea about it, how long is that? You can actually take 2 rounds of the earth, because the earth's circumference is somewhere near to 40,000 kilometers itself. Right? So you can take 2 or more turns of the earth. That long is our circulatory system. That means that, a big spread all over our body is required for the transport of substances to each and every cell of our body. So what is the components, right? What is this circulatory system made up of? The circulatory system is made up of 3 important things, that is your heart, vein and arteries, right? Heart, vein and arteries. So now when we talk about heart is basically the pumping organ. It acts like a pump, right, which will move this fluid. Now the fluid that this pump is moving is blood and lymph. Blood and lymph is the fluid which carries all the required substances which has to be transported from top to toe in our body. Now when we are talking about the pump is there and the fluid is there, then definitely pipes should be there, isn't it? So the pipes are nothing but arteries, veins and capillaries. So the major blood vessels, which are arteries and veins, right? So those are the component of our circulatory system. In this particular video, we are focusing on blood and lymph. All right. So my dear student, let's understand what is this blood and what it is made up of. So blood is basically a complex tissue. Yes, you heard me right. It is a tissue. And what kind of tissue? It is a fluid tissue. Now, if you recall the definition of tissue, which you must have learned from grade 7 till today, right? So tissue is basically group of similar cells which has the same aim to perform a particular function. Then we call it as tissue, isn't it? तो अब ये जो टिश्यू है, राइट, ये टिश्यू कैसा है? ये टिश्यू है जहां पे एक ही काम हो रहा है. काम क्या है? सारे के सारे ब्लड का, सारी सेल्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, हमें इम्यूनिटी देना. ये सारा काम ब्लड का है, right? So when we talk about a fluid tissue, that means there must be cells and वहाँ पे fluid भी होना चाहिए. So now what is the cells and what is the fluid? So when we talk about tissue, there is a matrix and in that matrix we have cells embedded in it. तो यहाँ पे जो tissue है
वो किस चीज से बना है? फ्लूइड टाइप का है। फ्लूइड है मतलब कि हाउ इज इट? इट इज बेसिकली हैविंग अ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ये क्या है? ये एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। ऑलराइट, और फ्लूइड मैट्रिक्स कौन है? ब्लड प्लाज्मा, जिसमें कई अलग अलग टाइप की डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर एम्बेडेड। यहाँ पे यू कैन सी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, अबाउट विच वी विल टॉक shortly. Okay, so now when we talk about blood, blood is composed of two important things, that is the fluid part and the solid part. Fluid part is your plasma and solid part is your blood cells, right? So when we talk about plasma, plasma is also made up of two things. What it is? It's the serum and the proteins. So when we talk about serum and protein, right, and plasma, so plasma is basically serum plus proteins plus other solutes as well. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही है, यहाँ पे सॉल्ट्स भी रहेंगे, यहाँ पे गैसेस भी रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन कि क्या क्या होता है प्रोटीन्स में, ठीक है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, वी हैव 3 मेजर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। व्हाट आर द 3 मेजर प्रोटीन? यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो कौन से हैं? पहला प्रोटीन फिब्रिनोजेन, दूसरा प्रोटीन आपका रहेगा अल्ब्यूमिन, तीसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन। तो चलो देखते हैं कि हर एक प्रोटीन का क्या क्या काम होता है, राइट। सो पहला प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया क्या है? फिब्रिनोजेन, राइट। सो फिब्रिनोजेन डज व्हाट? Fibrinogens help in blood clotting, right? Blood clotting. ऑलराइट, ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। कोई भी खून जब हमारा बह जाता है तो फिब्रिनोजेन वही प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म करता है, मदद करता है, राइट। वैसे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बाद में एक्टिव हो जाता है। दूसरा प्रोटीन जो यहाँ पे है वो कौन सा है? वो है अपना ग्लोब्यूलिन, राइट। कौन है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? Globulin are those globular proteins. Can you relate it to something? Right? Some word that is immunoglobulins. Right? तो ये क्या करता है? ये हमारे इम्यूनिटी में मदद करता है, राइट। इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी। तीसरा प्रोटीन कौन सा मैंने बताया आपको? तीसरा प्रोटीन, द थर्ड प्रोटीन वाज अल्ब्यूमिन, राइट। व्हाट इट वाज? अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन, क्या आपने अल्ब्यूमिन को देखा है? मैं बताऊं? हाँ जी, देखा है। अल्ब्यूमिन इज दैट प्रोटीन बेसिकली जो एग वाइट में मिलता है आपको, राइट। तो वो जो एग वाइट बना होता है वो सारा का सारा अल्ब्यूमिन का होता है। अब अल्ब्यूमिन का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। इसका काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या बेटा जी? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि हमारे शरीर में जो सॉल्ट और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे कंट्रोल करना किसका काम है? अल्ब्यूमिन का काम है। तो ये 3 मेजर प्रोटीन कौन से? फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड अल्ब्यूमिन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या प्लाज्मा में और कोई चीज मौजूद होती है? हाँ जी, बिल्कुल मौजूद होती है। ये तो अब हमने बात कर ली प्रोटीन्स की। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं यहाँ पे वो भी जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये प्रोटीन्स की बात होगी। अब न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे होते हैं ग्लूकोज, राइट। फिर अमीनो एसिड्स, राइट। अमीनो एसिड्स, क्योंकि अब इन्हीं से तो प्रोटीन्स बनेंगे, है ना। जो हम खाएंगे वो कहाँ पे डाइजेस्ट होके जाएगा? हमारे ब्लड में ही जाएगा। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा लिपिड्स भी होगा, ठीक है। अब लिपिड्स की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोस्ट्रॉल होगा क्या? हाँ जी भैया, यहाँ पे क्लोरोस्ट्रॉल भी होगा। आप कहोगे अरे मैम क्लोरोस्ट्रॉल तो खराब होता है, तो क्या ये यहाँ पे होगा? क्लोरोस्ट्रॉल, सारा का सारा क्लोरोस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज बैड बेटा। देयर इज गुड क्लोरोस्ट्रॉल विच इज यूजफुल, और क्लोरोस्ट्रॉल इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेनी हार्मोन प्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्या थी? ये न्यूट्रिएंट्स थी, ठीक है ना।
ये न्यूट्रिएंट्स थे। अब क्या इसके अलावा भी कुछ और मौजूद होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि आयंस, कौन से आयंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सोडियम, ठीक है, फिर पोटेशियम भी देखने को मिलेगा, मैंगनीज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लोरीन भी देखने को मिलेगा, कार्बोनेट्स भी देखने को मिलेंगे, HCO3 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये क्या हुए? ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दोज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। सो व्हाट अबाउट द गैसेस? आर गैसेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा? Yes, my dear students, definitely gases are also present. What kind of gases are present over here? तो gases मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। What kind of gases are present? गैस कौन से मौजूद रहेंगे? अब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट गैस है, फिर ऑक्सीजन जो कि हमारा रेस्पिरेटरी गैस है, राइट, ये मौजूद होता है। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये गैसेस यहाँ पे मौजूद होती है। ऑलराइट, आई बात समझ में? इज इट क्लियर? Okay, so these are the things which are present in the plasma, right? So serum, protein, inorganic components, organic components, right, gases, all of these are present in plasma. Okay, so when we talk about so many things are present, what else is present? Water. Water is also present. Water is near about 92%. इसके अलावा और क्या मौजूद होता है? पानी। पानी मौजूद होता है। पानी लगभग 92%, 90 to 92% होता है, राइट। 90 से 92% तक का पानी होता है प्लाज्मा में, और इसी की वजह से तो सारा चीज फ्लूइड है, राइट। इसी की वजह से तो सारी चीजें इसमें घुली हुई है, isn't it? Because of this water present over there. The rest of the things जो कि है वो सारी ये होती है, राइट। तो अगर 92% यहाँ पे 92% पानी है और ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी? सोल्यूट कहलाएगी, जो सॉल्वेंट में मिक्स्ड है, तब जाके ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो अब ये जो अपना प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स कितनी परसेंट होती है फिर यहाँ पे? 6 to 8%, ठीक है। 6 to 8% क्या होती है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में। इसलिए मैंने आपको बताया कि मेजर कंपोनेंट पहले क्या था? हमने बताया प्रोटीन था, राइट। सीरम की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, सीरम की भी बात करेंगे, लेकिन प्रोटीन को हमने देख लिया कि फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन, अल्ब्यूमिन ये सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। फिर ट्रेसेस में गैसेस, इनऑर्गेनिक दिस आयंस एंड द अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द plasma, where is it produced? Right? Where is it produced? It is produced in liver. Liver is what? Liver is your largest gland in the body. तो gland में, हमारे लीवर में ये मौजूद होता है। वो मौजूद नहीं होता है, वो बेसिकली वहां से उसका जेनेसिस होता है, वहां से वो बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स भी वहीं से बनती है, वहीं पे सिंथेसाइज होती है। सो इफ इन एग्जामिनेशन इट कम्स कि प्लाज्मा इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? लीवर। प्रोटीन्स इन प्लाज्मा आर सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? लीवर, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा, ऑल दिस प्लाज्मा इज मेड अप बाय द लीवर, व्हाट अबाउट ब्लड? तो क्या ब्लड भी वहीं से बनता है पूरा का पूरा? नहीं यार, ब्लड का जो प्रोसेस है बनने का, उसे हम कुछ कहते हैं, राइट। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? आई हैव गिवन यू द हिंट। H से शुरू होता है, राइट। इट इज कॉल्ड एज हेमाटोपोयासिस, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? हेमाटोपोयासिस। इसे हम कहते हैं हीमोपोयासिस या फिर हेमाटोपोयासिस, ठीक है। सो हेमाटोपोयासिस इज अ प्रोसेस by which the blood is being synthesized inside our body. Now this process of production of blood cell is happening where? Where is this hematopoiesis happening? Where is this hematopoiesis happening? It is happening in bone marrow. What kind of bone marrow? Red bone marrow. ऐसा वैसा नहीं, red bone marrow। ये कहाँ पे हो रहा है?
सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो से होता है। तो क्या ये हर एक बोन में हर एक जगह पे होता है? नहीं, इट हैपेंस ओनली एट द पेरिफेरी ऑफ लॉन्ग बोन्स। व्हाट इज पेरिफेरी ऑफ लॉन्ग बोन्स? तो ये हमारी बोन, तो मान लो कि फ्यूमर अपना सबसे लंबा बोन, राइट, तो इसके पेरीफेरी में होता है, क्योंकि रेड बोन जो है, रेड बोन मैरो जो है वो भी पेरीफेरी में मौजूद होता है, राइट। तो वहां से ये प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोएसिस होती है। इसे हम क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड? एपिफाइसिस। ऑलराइट, एपिफाइसिस। एपी मतलब साइड, साइड मतलब कि पेरीफेरी, पेरिफेरियल रीजन ऑफ बोन्स। ठीक है, पेरिफेरियल रीजन ऑफ बोन्स में द प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स होता है। तो ये सारी प्रोसेस हमने किसके बारे में देखी? अभी बोन सेल्स के बारे में देखी। प्लाज्मा के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आई नो सीरम इज पेंडिंग, आई विल कम शॉर्टली टुवर्ड्स द सीरम। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड सेल्स कौन सी है। हमारी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जो है ये सॉलिड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, राइट। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि प्लाज्मा जो है ब्लड में लगभग 55% होता है। 55% में 90 to 92% क्या होता है? पानी होता है। बाकी प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड गैसेस आर एम्बेडेड इनसाइड इट। ठीक है, तो सीरम कोई बहुत अलग चीज नहीं है, सीरम कोई बहुत अलग चीज नहीं है, बल्कि अगर हम सीरम की बात करें तो सीरम में हर एक वो चीज मौजूद है, हर एक वो चीज, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द सीरम एक्सेप्ट वन। एंड व्हाट इज दैट? सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा। तो मैंने क्या कहा? सीरम जो है वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही है। तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा, लेकिन इसमें क्या मौजूद नहीं है? इसमें मौजूद नहीं है माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा था बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर्स आर व्हाट? ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर व्हाट? द वंस which helps in making the clots, right? The one which helps the flow of blood, right? तो सीरम क्या हुआ फिर? सीरम क्या हुआ? सीरम equals to plasma minus clotting factor. Write it down. Very easy, right? Now serum has become very easy once we have understood plasma. It's all just like the plasma, only thing that is the clotting factor, fibrinogen kind of protein is not present in serum. Alright, now coming to the solid components. The solid components are also called as the formed elements. Right? Formed elements, which are near about 45%. And in that, what do we have? We have the erythrocyte, leukocytes and platelets. Erythrocytes are nothing but your RBCs. Your RBC. ठीक है? और फिर leukocytes are nothing but your WBC. समझ में आई बात? ठीक है, ये क्या होती है? WBCs होती है। और प्लेटलेट्स तो आप जानती हो, तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स का भी कोई खास नाम है? हाँ, है ना भैया। कौन सा नाम है? इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। बायोलॉजी में ना क्या है बेटा कि इफ यू हैव द आइडिया अबाउट द वर्ड्स, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। Just for an instance, just for an example, sites is always cells. Sites का मतलब क्या होता है? Cells. Corpuscles, cells, right? So sometimes we call them as RBC, red blood cells or red blood corpuscles. Alright, it's all cells. Then now when we talk about RBCs of one type itself, if we talk about thrombocytes or platelets, again of one type itself, right? But when we talk about the leukocyte, it has its own further classification. Alright, now you are going to get a fantastic tip which will help you to remember this topic forever. Right, so leukocyte can be divided into two groups.
granulocytes and agranulocytes. Why so? Because when we stain these cells, and after staining, the stain is taken up. Staining means we dye them for proper observation, right? So they take up these stains and then you see granules present over here, right? There are granules. So that is granulocyte. But when we talk about agranulocytes are plain kind of a thing. Okay, they do not have anything. They'll have the nucleus like this in center, and that's it. No granules are seen. Here, nucleus can be of various type, right? So, for example, the nucleus of this type, right? It looks like a headphone, isn't it? A headphone. So, that one, a earphone, that is eosinophil. That's the eosinophil. Okay. So now we have granulocyte, which is neutrophil, basophil and eosinophils. These are the types of cell. For now, just hear the words. I'm going to explain it in much more detail in coming session, right? So now a granulocyte is what? Monocytes and lymphocyte. So now what is monocyte and lymphocyte? Monocyte lymphocytes are a granulocyte type of leukocyte. Leuko is white, cyte, white cells, literally white blood cells, right? So to understand one more thing which is very important over here, that WBC is the only cell which is present in the blood possessing the nucleus. इसके पास nucleus है, बाकी आपकी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, आपकी प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है. वो कैसी सेल्स होती है? इन्यूक्लिएटेड सेल्स, हैव नो न्यूक्लियस. हालांकि जो मैच्योर आरबीसीज होती है उनमें इन्यूक्लिएट स्टेज दिखाई देता है. जो यंग आरबीसीज है, जो हिमेटोपोइसिस से अभी बन रही है, इन दैट small younger stage of RBC, they have nucleus and the other organelles as well, right? So why we will talk about it? No worries. Now here what we have granulocytes, monocytes and lymphocytes, right? Now lymphocytes can be of two types, your B lymphocytes and T lymphocytes. If I have to take it further, when we will talk about immunology, you will hear the types of B cells and types of T cells as well, the T killer cells, the T helper cells and so on. But for now this is enough, right? So lymphocytes, the immune cells, the T cells and the B cells, right? Why T, why B? It is basically depicting its site of maturation and production, right? So like for example, T cell is actually maturing in your thymus, right? That's why the T cell. ठीक है. So अभी monocytes are the largest of the granulocytes. Lymphocytes are the smallest type of granulocytes. Now how to remember? We have how many types of leukocyte altogether? 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, we have 5 types of WBCs: neutrophils, basophils, eosinophils, monocytes and lymphocytes. Now how to remember which is a granulocytes and which are the granulocyte group? Very easy. Just remember one word, that is MLA. MLA, member of parliament. क्या कहते हैं इसे? ठीक है, MLA. आप तो जानते हो MLA की पोजीशन होती है बढ़िया सी पॉलिटिक्स वाली, है ना? तो ये जो MLAs है, ये कौन कौन है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कैसे है? अग्रैन्युलोसाइट. मोनोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है? अग्रैन्युलोसाइट. दैट्स ऑल एंड दैट्स हाउ वी विल रिमेंबर. द रेस्ट जो MLA नहीं है, मतलब कि आपके इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये क्या है? ये ग्रैन्युलोसाइट्स है. अब इसमें भी है, इसमें भी ऐसा नहीं है. आई हैव अ ट्रिक फॉर दिस ऑल्सो. इफ यू रिमेंबर Ben 10, डू यू रिमेंबर दिस? Ben 10. Ben 10 was a cartoon, है ना? Ben 10. Ben 10 was a cartoon that we used to see. अभी भी बहुत famous है. तो बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, that is the group of granulocyte lymphocytes. ठीक है? तो neutrophils is found in maximum amount.
बेसोफिल्स आर फाउंड इन लेस अमाउंट। और ये जो इयोसिनोफिल्स है, दिस आर वेरी एक्टिव फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, हम कहते हैं ना हाँ ई, राइट, सो ई से इयोसिनोफिल। और इसका मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है इस तरीके से। ठीक है, और ग्रैन्यूल्स भी दिखाने पड़ेंगे, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी मौजूद होते हैं। देन वी हैव बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स कैसी होती है, बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसमें ग्रैन्यूल्स फिर से। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का भी कैसा होता है, मल्टी, इनका जो लोब्स है ना ज़्यादा होती है, सो दैट इज न्यूट्रोफिल। नाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर, ट्राई एंड आंसर कि ग्लोबुलिन्स इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन्स, राइट, ग्लोबुल, आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, clotting of blood, or defense mechanism of body. So who does the defense mechanism of a body? Immunoglobulins, right? Immunoglobulins are what? Your antibodies. Gamed जिसे हम कहते हैं ना, IgA, IgE, IgM, right? So all of those are what? Globulins, which are involved in immune system. So correct answer for this would be what? Defense mechanism of body. All right. Now let's see the further. Till now what we have understood? We have understood कि blood has what? It has plasma inside it, right? Then we have white blood cells, platelets, and the red blood cells which are present over here. Plasma is this yellowish color fluid, right? Transparent, translucent होता है ये। ठीक है, ये जो है this is the matrix in which the other cells of blood are embedded. All right, so now let's go one by one. Types of blood cells. We'll talk about blood cells now. So what are blood cells? Blood cells are your RBC, platelets, monocytes, lymphocytes, eosinophil, neutrophils, and the basophils. Right? Eosinophil, neutrophils, and the basophils. As I've told you over here, देखो basophil का कैसा है, ठीक है? हल्का सा उसमें लोब्स दिखेंगे, लेकिन मेजरली एक ही रहता है न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल में मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब दिखाई देता है। ठीक है, इसमें काफी सारे लोब्स होते हैं। देन इयोसिनोफिल्स का कैसा होता है, हेडफोन, ईयरफोन, ईयरफोन से याद रखेंगे हम, है ना, हेडफोन जैसा इसका लोब होता है। बाकी ग्रैन्यूल्स आपको देख रहे हैं, और एमएलए तो अलग से ही बैठे, इनमें सिंगल ही होता है। लिम्फोसाइट का क्या होता है, बड़ा सा मेजर प्लेस ऑफ दैट सेल is occupied by the nucleus. Now, how to remember the speciality of these things? I have got you a chart for this, right? The table over there, and you can also use the same thing for remembering it more prominently. Now, we have taken characteristics, the types of cells, RBC, WBC, and platelets. Now, let's see one by one. The name for RBC is what? RBC को हम क्या बुलाते हैं, एरेथ्रोसाइट्स। एरेथ्रो मतलब बेसिकली दैट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है रेड, तो रेड सेल्स, लिटरल मीनिंग रेड सेल्स। क्या इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है? नो, न्यूक्लियस इज नॉट मौजूद, इट हैज नो न्यूक्लियस, इट इज enucleated, because of which it becomes what? It becomes biconcave shape, दोनों टाइप से, दोनों तरफ से पचका हुआ सेल, राइट। फिर डिस्कॉइडल, इसका शेप कैसा होता है, डिस्क जैसा होता है, राइट, जो डिस्क हम खेलते भी है ना, फिस्बी वाला, बिल्कुल वैसा ही होता है। देन व्हाट इज द count? Count is like 5 to 5.5 million per millimeter cube of blood, right? तो इतना इसका normal count होता है. Now when the count goes high or the count of RBCs goes down, that's a problem, right? So when it is high, we call it polycythemia. Now see here. Polycythemia vera, right? Poly मतलब ज्यादा, है ना, हम कहते हैं
polymer of something, right? Polymer of a molecule. Poly मतलब कि multiple. तो poly, site is cell, system या vera, right? तो ये हो गया अपना RBC का एक्सेस होने पे क्या कहलाता है? पॉलीसिस्टेमी वेरा, राइट? तो पॉलीसिस्टेमी वेरा कंडीशन से क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, हो सकती है ना, क्योंकि ब्लड जो है वो अब ज्यादा थिक बन जाएगा, है ना, उसका जो फ्लूइडिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? तो देन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. देन वी हैव लो काउंट एज वेल. तो लो काउंट होने से क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उस कंडीशन का नाम है, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज एरिथ्रोसाइटोपेनिया. एरिथ्रोसाइटोपेनिया, राइट? तो पेनी हम कहते हैं ना, पेनी एक कौड़ियों के दाम, राइट? हमें पेनी, इट इज जस्ट वर्थ वाइल अ पेनी, इट्स नॉट वर्थ वाइल अ पेनी ऑल्सो. तो पेनी मतलब कम. तो ऐसे हम याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया. एरिथ्रोसाइट तो पता ही है, पेनिया मतलब कौड़ी जैसा, ठीक? तो कम दाम वाला, तो कम, तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया. When we have less RBC, the person can become anemic as well. Anemic मतलब जहां पे उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया, राइट? उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया. अब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, दैट्स ऑल. क्योंकि इसके पास कुछ नहीं होता. मैच्योर होने के बाद इसका न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? गोल्जी एपरेटस नहीं है, कुछ नहीं है. तो इसके पास जो भी बचपन में इसने बना रखा है, बचपन मतलब यंग आरबीसी, वॉट एवर इट हैज प्रोड्यूस्ड, it will last for 120 days. After that it dies and it goes and get deposited into the spleen. That's why spleen is a small organ which in our abdomen, जिसे हम कहते हैं graveyard of RBC. ठीक है, graveyard of RBC. Formation erythropoiesis in bone marrow. इसका दूसरा नाम क्या है? erythropoiesis. Hemopoiesis क्या है फिर? Hemopoiesis is production of all these cells, सारे के सारे सेल्स ऑफ ब्लड, राइट? बट आरबीसी के बनने को हम कहते हैं एरिथ्रो. एरिथ्रो नाम को हम याद रखेंगे, इट इज रिलेटेड टू आरबीसी रेड. मैंने आपको बताया एरिथ्रो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर रेड, राइट? देन इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों से बाइंड होता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड होता है. तो चलो, अब ये हो गई बात हमारी आरबीसी के बारे में. अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ठीक है? तो दूसरा नाम इसका क्या है? ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब कि सेल. देन वी हैव न्यूक्लियस ओवर हियर. तो वो जो कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला जो खून कलेक्ट करके लेके जाता है ना साइड से, क्राइम सीन से, तो उसके काम पूरे खून में से कौन आता है? सिर्फ WBC आता है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बाकी किसी सेल में डीएनए है ही नहीं, है ना? तो वही काम आती है. और ये कितनी होती है? लेस देन 1% इन आवर ब्लड, राइट? तो इसका शेप कैसा है, रंग रूप कैसा है? रंग तो आपको पता है कलरलेस होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाता है, ठीक है? हाँ, कलरलेस होती है, व्हाइट नहीं होती एक्चुअली, कलरलेस होती है, व्हाइट दिखाई देती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स. तो इसका शेप कैसा होता है बेटा? इसका शेप होता है पॉलीमॉर्फिक. इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसी अमीबॉइड शेप की होती है, राइट? जिसे हम कहते हैं अमीबॉइड सेल्स. हाँ, अब इसमें क्या है? इसमें ये न्यूक्लियस तो जरूर मौजूद है, ठीक है? अब इसका काउंट कितना होना चाहिए? तो 6000 से 8000, 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब, इतना होना चाहिए. फिर अगर ये ज्यादा हो तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है? अगर ये ज्यादा हो काउंट में तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. और अगर ये कम है तो हम इसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया, राइट? तो सेम टर्मिनोलॉजी गाइस, एरिथ्रोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ठीक है? ल्यूकोपेनिया. अब ये इसका लाइफ स्पैन कितना है? डेज से लेके ईयर तक. तो 6 दिन, 1 हफ्ता, राइट? 2 years long it can stay. Years long, how can that cell stays for year long? Basically जो हमारी memory cells होती है, right? The cells which are responsible for our memory, जो हमारी immunological memory cells होती है, उस वजह से हम कहते हैं कि years long भी ये होता है, ठीक है? Then we have leukopoiesis in bone marrow and lymph node. Point to be noted, my lord. Right? It is
लिम्फ नोड में भी ये तैयार होते हैं, वहां पे कई सारे जो है वो स्टोर भी किए जाते हैं और मैच्योर भी होते हैं, ठीक है। सो ये बात हुई लिम्फ नोड्स की। फिर बात करते हैं कि इनका काम क्या है, हमें इम्यूनिटी देना है ना। जैसे कि ल्यूकोसाइट्स का टाइप हमने देखा, टी सेल, बी सेल, मोनोसाइट जो है वो फैगोसाइटोटिक सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो भी फैगोसाइटोटिक सेल्स होती है। तो वो क्या करती है, वो हमें डिफेंस मैकेनिज्म देती है, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर क्या है, फिर अब बात करेंगे हम, अच्छा अगर यहाँ पे WBCs का काउंट कम हो जाता है तो कोई कंडीशन है, जैसे मैंने आपको RBC के सिचुएशन में बताया कि एनीमिया हो जाता है, यहाँ पे ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर बेसिकली, है ना, जहाँ पे ब्लड WBC की काउंट एकदम ही गिर जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे टाइप की और आखिरी टाइप के सेल की, जो कि है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इन्हें, है ना, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होती है, इनकी भी स्ट्रक्चर शेप कैसी होती है, इरेगुलर सी स्ट्रक्चर होती है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। इनका काउंट कितना होता है, इनका काउंट होता है 1.5 to 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब, 1.5 से लेके 3.5 तक ये रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इनका काउंट बढ़ जाए तो हम इन्हें क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। बिल्कुल वैसा सही टर्मिनोलॉजी बेटा, बस आपको याद रखना है थ्रोम्बो बिकॉज इट इज प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइटोसिस बिकॉज इट इज WBC, राइट। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, पॉलीसाइटोमिया वेरा विच इज इन केस ऑफ RBC। नाउ when it is less, what happens? When it is less in count, it is called as thrombopenia, right? So अब what does it, how long does it live for? It can live for 1 week. So if somebody asks you which one is the shortest lived blood cell, right, then definitely it would be your platelets. So now where is it happening? It is happening in bone marrow, right, by megakaryocytes. Megakaryocytes are the mother cells for your thrombocytes, and the process is called as thrombopoiesis. So similar, leukopoiesis, erythropoiesis, right? Erythropoiesis, leukopoiesis, thrombopoiesis together are called as hemopoiesis. Simple, yeah. So what does it do? It does the job of blood clotting. What does it do? It helps in blood clotting. Fantastic. So that was about our blood compositions. We will talk about each and every cell in detail in the coming sessions. Thank you, superstars, for now. See you soon. Keep learning.